हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई एम योर केमिस्ट्री टीचर दीक्षा एंड आई वेलकम यू ऑल टू क्लास 9th साइंस चैप्टर नंबर 2 is matter around us pure. Now students, in the previous classes we already studied about true solution. हमने देखा था true solutions क्या होते हैं, ये होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं. तो हमने इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था, हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे. Students, in this particular video lesson, we are going to talk about suspension and colloid. So, suspension and colloids both are heterogeneous mixtures. तो हम इसकी properties देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि ये true solution से कैसे different है. Okay, so I hope students you already have gone through the true solutions, what are heterogeneous mixtures, homogeneous mixtures, and then you are here to study suspensions and colloids. So let's get started students. So सबसे पहले हम बात करते हैं students suspension की. Suspensions क्या होते हैं? Heterogeneous mixtures. So students, remember this, they are heterogeneous mixtures, right? जो particles है वो uniformly distributed नहीं है, ठीक है? तो इसका मतलब ये कि solute particles जो है वो bigger size के हैं. यहाँ suspension में क्या है? Solute particles are so big that you can see it from your naked eyes. आप उन्हें आराम से अपनी आंखों से देख सकते हैं. For example, if you take a mixture of sand and water, तो अगर आपने sand को पानी में डाला और उसे stir किया, so you will see that the particles of sand are there hanging in the water. You can easily see the sand particles. And after some time, कुछ टाइम बाद आप ये देखेंगे कि ये solute particles जो हैं ये सेटल डाउन हो गए हैं, ठीक है? तो इसीलिए हम इनको क्या नाम देते हैं? इस तरह के हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स जिनमें सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज काफी बड़ा होता है, उनको हम क्या कहते हैं? सस्पेंशन, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास सैंड एंड वाटर एक एग्जाम्पल है सस्पेंशंस का. और आगे के एग्जाम्पल्स देखेंगे फ्लावर एंड वाटर. आपने फ्लावर है जो उसको पानी में डाला तो उसमें भी फ्लावर के पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है? Now students, let's have a look at some of the properties of suspension. ठीक है? सबसे पहली बात तो कि ये heterogeneous mixtures हैं, correct? और इनके जो particles है, solute particles की size visible होती है to the naked eyes. You can easily see the solute particles in the medium. Okay? इतने बड़े होते हैं, they are greater than 1000 nanometers. So if you remember students, जब हमने true solution पढ़ा था, ट्रू सॉल्यूशंस में पार्टिकल्स की साइज कितनी छोटी थी? इट वाज अबाउट 1 नैनोमीटर. इतने छोटे पार्टिकल्स थे, इसीलिए आपको उनके पार्टिकल्स दिखते नहीं थे. ट्रू सॉल्यूशन के जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है, दे आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आईज, ठीक है? यहाँ पे जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स है वो उनकी साइज इतनी बड़ी है, दे आर ग्रेटर दैन 1000 नैनोमीटर, ठीक है? नाउ इट्स एन अनस्टेबल मिक्सचर. Again students, please try to remember the true solutions. True solution में हमने क्या देखा था कि वो stable mixture थे. मतलब क्या हुआ इसका कि अगर हम true solutions को रख देते हैं, if we leave them undisturbed for some time, what will happen? The solute particles they do not settle down. Okay? जो solute particles होते हैं वो पूरी तरह dissolve हो जाते हैं, ठीक है? पर यहाँ पे क्योंकि ये particles बहुत बड़े हैं, वो dissolve नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं? If you leave them for some time undisturbed, you will see there are 2 layers created, है ना? आपके जो particles है वो नीचे settle down हो जाते हैं. इसका मतलब mixture क्या है? Unstable, ठीक है? Solute particles settle down at the bottom over a period of time, ठीक है? Now then we have this process of filtration. हमने ये देखा था कि true solution के particles को we cannot separate them by the process of filtration, but we can separate the particles in a suspension through filtration very easily. तो अगर आपके पास मिक्सचर है सैंड और वाटर का, तो आप फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से सैंड पार्टिकल्स और वाटर को बहुत आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है? So this is what they are trying to say. The solute particles can be separated from the mixture by applying the process of filtration, ठीक है? Now there is a term known as Tyndall effect. ये हमने last time पढ़ा था. Tyndall effect. Tyndall effect is what? When the light is thrown on any medium. आपकी जो light है वो कभी भी क्या करती है? किसी medium के through pass करती है. What will happen?
either the particles are able to scatter the light or they are not. तो particles की size पे depend करता है. If the particle size is very small, like in the case of true solutions, so the particles are not able to scatter the beam of light which is passing through them. Okay? तो जब भी particles से light टकराती है तो वो पार्टिकल क्या करता है, लाइट को इधर उधर अलग अलग डायरेक्शंस में स्कैटर करता है, बिखराता है. तो इस स्कैटरिंग से क्या होता है, लाइट का पाथ आपको उस मीडियम से दिखना चाहिए. ट्रू सॉल्यूशंस के केस में ऐसा नहीं था. व्हाई? बिकॉज द पार्टिकल साइज वाज वेरी स्मॉल. वेरी लिटिल साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स, दे आर नॉट एबल टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट. पर यहाँ सस्पेंशन के पार्टिकल्स की साइज होती है बड़ी, तो ये स्कैटर कर सकते हैं बीम ऑफ लाइट को. सो दे आर एबल टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट विच इज पासिंग थ्रू इट. पर यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, द सस्पेंशन शुड नॉट ब्रेक. इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं सस्पेंशन लेती हूँ फ्लावर और मिल्क का, तो फ्लावर के पार्टिकल्स अभी भी सस्पेंडेड है मिल्क के अंदर, ठीक है, दे आर नॉट सेटल डाउन. अगर कोई सस्पेंशन सेटल डाउन हो जाता है, मतलब वो ब्रेक हो जाता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, तब वो लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते. सो देयर इज अ कंडीशन. ओके, सस्पेंशंस कैन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट बट द सस्पेंशन शुड नॉट ब्रेक. ब्रेक का मतलब कि सॉल्यूट पार्टिकल्स अगर सारे सेटल डाउन हो गए तो सस्पेंशन ब्रेक हो गया, तब वो स्कैटर नहीं कर सकता. अगर सस्पेंशन ब्रेक नहीं हुआ, स्टिल द पार्टिकल्स आर मूविंग इन द मीडियम, then it can scatter the beam of light. So ये ध्यान में रखनी है बात, ठीक है. Now students, let's have a look at the second category of heterogeneous mixtures, that is colloids. Colloidal systems क्या होते हैं students? ये intermediate होते हैं, बीच में. मतलब true solutions और suspension के जितने particles हैं, उनकी sizes के बीच में इनके particles की sizes आती है, ठीक है. So what are colloidal solutions? They are again heterogeneous mixtures in which size of particles lies between true solutions and suspension. So true solution के particles बहुत छोटे होते हैं, suspension के particles बहुत बड़े होते हैं. तो इन दोनों के बीच में जो lie करता है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, colloids, ठीक है. Examples: milk, blood. So students, if you carefully see milk and blood, आपने मिल्क देखा है तो आपको ये लगेगा कि मिल्क तो बहुत होमोजीनियस है. क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स सस्पेंशन के पार्टिकल्स की तरह बिल्कुल नहीं दिखते हैं. आर यू एबल टू सी बिग साइज पार्टिकल्स इनसाइड मिल्क? नो. यू आर एबल टू सी इट वेरी क्लियरली इन सस्पेंशन. सस्पेंशन में सैंड पार्टिकल्स आपको बहुत आसानी से नजर आते हैं. पर मिल्क के अंदर जो पार्टिकल्स है, मैंने क्या बताया था, वी डिड इट इन द बिगनिंग दैट मिल्क इज अ मिक्सचर. व्हाई? बिकॉज इट्स अ मिक्सचर ऑफ वाटर, प्रोटीन्स, फैट्स, शुगर. तो क्या आपको शुगर पार्टिकल्स, प्रोटीन पार्टिकल्स या फिर फैट पार्टिकल्स नजर आते हैं क्लियरली मिल्क में? नहीं. तो ऐसा लगता है कि कोलॉइड्स क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है ना, इवन डिस्ट्रीब्यूशन लगता है, पर ऐसा नहीं है. क्यों ऐसा नहीं है? बिकॉज इन ट्रू सॉल्यूशंस द पार्टिकल्स गेट डिसॉल्व्ड. ओके, आपने शुगर डाली या आपने सॉल्ट डाला पानी में, तो इनके पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं. पर मिल्क के केस में ऐसा नहीं है. मिल्क में वाटर के अंदर फैट, प्रोटीन, ये सारे पार्टिकल्स सस्पेंडेड है. सस्पेंडेड मतलब दे आर हैंगिंग इन द मीडियम. सो बेसिकली दे आर नॉट डिसॉल्व्ड. सिमिलरली इन केस ऑफ ब्लड, आपने देखा है ब्लड जब आता है, आपने ब्लड को बहुत केयरफुली देखा है, तो आपको ब्लड कैसा लगेगा, बिल्कुल पानी की तरह लगता है. सो यू विल से मैम ब्लड लुक्स लाइक अ होमोजीनियस मिक्सचर, बट इन फैक्ट इट इज नॉट. क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर अगर आपने कॉम्पोनेंट स्टडी किए अपने बायोलॉजी लेसन में, सो यू मस्ट हैव हर्ड दैट ब्लड इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा. उस लिक्विड फ्लूइड प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे सेल्स सस्पेंडेड है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स. तो ये सारी सेल्स डिसॉल्व फॉर्म में नहीं है, ये हैंग कर रही है. इट इज हैंगिंग इन द मीडियम. दैट्स व्हाई these colloidal solutions are considered as heterogeneous and not homogeneous. Although they look homogeneous, but they are heterogeneous mixtures. ठीक है, समझ आ गया? तो यहाँ बेसिक डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स इन तीनों में? द पार्टिकल साइज. ठीक है, तो ट्रू सोल्यूशन में द पार्टिकल साइज आर having a size of less than 1 nanometer. In colloidal solutions, they lie between 1 to 1000 nanometer,
and in the case of suspension the particle size is more than 1000 nanometer. तो यहाँ पे particle size का difference है, ठीक है, इसीलिए इनके बीच में differences हैं, properties में differences हैं. So let's have a look at the properties, but before that let's have a look at the components. जैसे हमने students true solution के केस में components study किए थे. What are the two components? Solvent and solute, है ना. Similarly in the case of colloidal solution again we have टू कंपोनेंट्स जिससे बनता है हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन. एक कंपोनेंट होता है डिस्पर्जन मीडियम और दूसरा कंपोनेंट होता है डिस्पर्स्ड फेज. यहाँ पे हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो टर्म है वो यूज नहीं करेंगे बिकॉज कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर नॉट ट्रू सॉल्यूशंस. ट्रू सॉल्यूशंस में हम क्या यूज करते हैं, जो कंपोनेंट ज्यादा अमाउंट में उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट और जो कंपोनेंट कम अमाउंट में है उसे हम कहते हैं सॉल्यूट. यहाँ पे भी वही सेम चीज है पर टर्म डिफरेंट है. कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट जिससे कोलॉइडल सॉल्यूशन बना है जो ज्यादा अमाउंट में है, इन मोर अमाउंट, ओके, so the component which is there in more amount it is termed as dispersion medium और उस मीडियम में हैंग करते हैं पार्टिकल्स, ठीक है. तो उस कम अमाउंट के जो आपका पार्टिकल्स है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्पर्स्ड फेज. सो यू कैन राइट इट, डिस्पर्स्ड फेज आर इन लेसर अमाउंट, ओके. सो इन अ कोलॉइडल सॉल्यूशन वन ऑफ द कंपोनेंट इज इन मोर अमाउंट, तो उसे हम कहते हैं डिस्पर्जन मीडियम. वन ऑफ द कंपोनेंट इज इन लेसर अमाउंट एंड वी टर्म इट एज डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है. तो डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्जन मीडियम में हैंग करता है, ठीक है, सस्पेंडेड है. गॉट इट स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे सिर्फ टर्म का डिफरेंस है, बाकी मतलब वही है, करेक्ट. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स हैव अ लुक एट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम suspensions and true solutions. Let's have a look. So they are also heterogeneous mixtures like suspensions, correct, and unlike true solutions. Size of the particles, okay, is too small to be seen individually by the naked eyes. तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स कोलॉइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, ठीक है. ट्रू सॉल्यूशन के भी हमें नहीं दिखाई देते थे, कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स भी हम नहीं देख सकते. आर यू एबल टू सी द पार्टिकल्स ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स एंड शुगर इन मिल्क? नो, ओके. सो यहाँ पर भी हम नहीं देख सकते पार्टिकल्स को, बट दे आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट. मतलब कोलॉइडल सॉल्यूशंस क्या शो करते हैं, टिंडल इफेक्ट. गॉट इट स्टूडेंट्स. मतलब सस्पेंशंस भी टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशंस में टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, पर ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत ही छोटे हैं इसलिए वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते, ठीक है. लाइट की स्कैटरिंग, लाइट जब किसी पार्टिकल से हिट करती है, कोलाइड करती है, तो वो पार्टिकल क्या करता है, उस लाइट को अलग अलग डायरेक्शंस में फेंकता है, ठीक है, स्कैटर करता है, बिखराता है लाइट को, करेक्ट. ये चीज कब पॉसिबल है, जब पार्टिकल की साइज थोड़ी बड़ी होती है. छोटे पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते, बड़े पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर कर सकते हैं. तो कोलॉइडल सॉल्यूशन क्योंकि इनकी साइजेस क्या है, इंटरमीडिएट है ना, तो इसीलिए ये हमें दिखाई तो नहीं देते पार्टिकल्स, पर ये इतने बड़े होते हैं कि वो टिंडल इफेक्ट शो कर सकते हैं, राइट. नाउ दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब. इसका मतलब ये लाइक ट्रू सॉल्यूशंस कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर ऑल्सो स्टेबल. समझ आ गई ये बात. ट्रू सॉल्यूशंस की तरह ही अगर आप मिल्क को बहुत देर तक के लिए रखें तो क्या उसके पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन होते, नहीं, करेक्ट. सो दैट्स व्हाई कोलॉइड्स आर ऑल्सो स्टेबल. Particles cannot be separated by filtration. So again students, like true solutions, अगर आप फिल्टर करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन को तो वो भी फिल्टर नहीं होते, उसके पार्टिकल्स रेजिड्यू के फॉर्म में अलग नहीं होते. सो इफ यू टेक ब्लड एंड इफ यू ट्राई टू फिल्टर इट, सो यू विल सी दैट नो सेल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द प्लाज्मा. सिमिलरली इन द केस ऑफ मिल्क, मिल्क को भी अब आप फिल्टर करते हैं तो आपको प्रोटीन अलग नहीं दिखेगा, फैट अलग आप उसको नहीं कर सकते, करेक्ट. शुगर को आप अलग नहीं कर सकते. सो फिल्ट्रेशन मेथड से components of the colloidal solutions cannot be separated. Then how can they separated? They can be separated by applying the process of centrifugation. Centrifugation की टेक्निक क्या होती है स्टूडेंट्स, कि इसमें जब आप कोई colloidal solution लेते हैं और उसे हाई स्पीड पे
रन करते हैं, हाई स्पीड पे क्या करते हैं, उसको घुमाते हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, हाई स्पीड पे जब कोलॉइडल सॉल्यूशन घूमता है तो जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं और हेवियर पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो यहाँ पे सेपरेशन हो गया ना, कोलॉइडल पार्टिकल्स का इस तरह से हेवियर और लाइटर पार्टिकल्स में सेपरेशन हो जाता है बाय अप्लाइंग द टेक्निक ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। गॉट इट। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कोलॉइड्स की जो प्रॉपर्टीज है, कुछ प्रॉपर्टीज ट्रू सॉल्यूशन से मैच करती है और कुछ प्रॉपर्टीज आपके सस्पेंशन से मैच करती है, बिकॉज द साइजेस ऑफ पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। करेक्ट। नाउ टिंडल इफेक्ट को थोड़ा सा और समझते हैं। दिस इफेक्ट स्टूडेंट्स इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इट, जॉन टिल्डन। ओके, जॉन टिंडल ने क्या किया था, ये सबसे पहले उसको दिखा था ये इफेक्ट। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इफ यू सी दिस इज ट्रू सोल्यूशन एंड दिस इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क। ट्रू सोल्यूशन में आप ये कह सकते हो वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर है। ओके, सो लेट्स से दिस इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट एंड दिस इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क। तो मिल्क क्या है स्टूडेंट्स, एक कोलॉइडल सोल्यूशन है, उसमें पानी डाल दो तो वो भी कोलॉइडल सोल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। अब आपने डाली इसमें फ्लैश लाइट, सो बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन आर वेरी टाइनी, तो ये टाइनी पार्टिकल्स लाइट को अपने थ्रू पास, तो यहाँ पे लाइट पास तो हो रही है स्टूडेंट्स, पर स्कैटर नहीं हो रही, मतलब लाइट आपको अंदर से जाती हुई नजर नहीं आएगी। ठीक है, द पाथ ऑफ द लाइट इज नॉट विजिबल, बट इफ द सेम फ्लैश लाइट इज देन pass through the mixture of water and milk, so you are able to see the light inside this colloidal mixture। मतलब आपको लाइट कोलॉइडल सोल्यूशन के अंदर से जाती हुई दिखेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ के पार्टिकल्स बड़े हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं। तो जब लाइट स्कैटर होती है, अलग अलग दिशाओं में जाती है, तो वो आपको दिखती है जाती हुई। ठीक है, Now let's see, let's have a look at this original picture here। तो ये है ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स। अब आप देख सकते हैं यहाँ अंदर आपको लाइट नजर आ रही है, नहीं, ये है हमारा कोलॉइडल सोल्यूशन। आई थिंक दिस इज एग। ठीक है, एग होता है, वो भी क्या होता है, एक कोलॉइडल सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे एग या मिल्क के थ्रू अगर आप लाइट पास करेंगे तो ये देखिए लाइट का पाथ आपको अंदर भी नजर आएगा। सो व्हाट इज टिंडल इफेक्ट बेसिकली स्टूडेंट्स, द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट by a medium containing small suspended particles। मतलब आपका एक मीडियम है, उसके अंदर पार्टिकल्स हैंग कर रहे हैं, तो उन हैंगिंग पार्टिकल से क्या होता है, लाइट स्कैटर होती है और आपको लाइट का पाथ विजिबल होता है उस मीडियम में। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज नोन एज Tyndall effect। It is absent in true solution, but it is shown by suspensions and colloidal solutions, right? Now there is one more way in which you can see this Tyndall effect very easily in your daily life। आपकी डेली लाइफ में अगर आप देखें, एक स्मॉल होल से अगर आप लाइट को पास करें तो स्मॉल होल से आती हुई लाइट का पाथ आपको नजर आएगा, वो लाइट की रेज आपको बहुत आसानी से नजर आएगी। क्यों? क्योंकि उस मीडियम में क्या है, डस्ट पार्टिकल्स हैं और स्मोक पार्टिकल्स है। Dust and smoke particles are big, okay? So what they can do, they can scatter the light which is passing through that small hole and the path of light is easily visible to you। One more example which you can see is in the forest। Forest में क्या होता है, घना जंगल जब होता है, it's a dense canopy, okay? Canopy का मतलब क्या होता है, cover। Canopy of dense forest, इतना घना जंगल होता है कि उसके बीच में क्या होते हैं, there are very tiny holes, okay? घने जंगल के बीच में बहुत से टाइनी टाइनी होल्स की तरह प्रेजेंट होता है। तो जब सनलाइट उससे पास होती है तो यहाँ पे जंगल में क्या होते हैं, पूरे मीडियम, एयर इज अ मीडियम और उसके अंदर क्या हैंग कर रहा है, मिस्ट, ओके, वाटर ड्रॉपलेट्स हैंग कर रही है। वो वाटर ड्रॉपलेट्स काफी बड़ी होती है, तो जैसे ही सनलाइट उन वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू जाती है तो वाटर ड्रॉपलेट्स लाइट को स्कैटर करती है। सो दिस इज हाउ यू कैन सी द लाइट कमिंग। आप देख सकते हो इस तरह से लाइट रेज आपको दिखती है आती हुई in a jungle। So this is something you can see in your daily life। This is what scattering of light means। So in forest, mist contains tiny drop of water। So आपके drop of water जो है वो hang करती है medium में, which act as a particle of colloid। तो ये colloidal particles की तरह act कर रही है present in the air। So sunlight when strikes these colloidal particles of water, they scatter the beam of light and hence you can see the scattering। वो आप पाथ देख सकते हो लाइट का easily in the dense forest। This was all about Tyndall effect। और अब आप समझते हैं स्टूडेंट्स कि क्यों ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स Tyndall effect शो नहीं करते पर सस्पेंशन और कोलॉइडल पार्टिकल्स शो करते हैं।
It's all about the size of particles. Now students, colloidal particles बहुत तरह तरह के होते हैं. It depends on the dispersing medium and dispersed phase. ठीक है, dispersing medium क्या है, dispersed phase क्या है, उसके अकॉर्डिंग बहुत टाइप्स के colloids पाए जाते हैं. So let's have a look. You have to learn this table students, you have to memorize and it's very easy. I'll tell you how to do it. Okay, dispersing medium मतलब कि medium मतलब ज्यादा अमाउंट में जो प्रेजेंट है colloidal solution में. phase, dispersed phase मतलब जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है. So if the dispersing medium is gas, उस गैस के अंदर लिक्विड के पार्टिकल्स हैंग कर रहे हैं, ठीक है, कोलॉइडल पार्टिकल्स, उस तरह के कोलॉइड को क्या कहा जा रहा है, एरोसॉल. अब स्टूडेंट्स ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि कोलॉइड्स को या कोलॉइडल सॉल्यूशंस को हम एक कॉमन नाम क्या बोलते हैं, सॉल. ठीक है, तो एक और नाम है, या तो आप बोलो कोलॉइड्स, या आप बोलिए कोलॉइडल सॉल्यूशंस, या फिर आप बोलिए सॉल. ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि गैस ज्यादा है लिक्विड कम है, तो ये क्या हो गया, एरोसॉल. एरोसॉल का क्या एग्जाम्पल्स है, फॉग, मिस्ट. तो मिस्ट के अंदर क्या है, हवा में गैस इज मोर, उसमें लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है हैंगिंग, तो मिस्ट क्या हो गई, एक तरह का एरोसॉल हो गया. इट्स अ कोलॉइडल सॉल्यूशन. ओके, सिमिलरली स्टूडेंट्स, अभी भी क्या है, गैस अगर डिस्पर्सिंग मीडियम है पर उसके अंदर सॉलिड के पार्टिकल्स हैंग कर रहे हैं, ठीक है, गैस ज्यादा सॉलिड के पार्टिकल्स हैंग कर रहे हैं, तो उसको भी क्या कहा जाएगा, एरोसॉल. जब भी डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है तो उसके अंदर जो टाइप ऑफ कोलॉइड है उसको क्या कहेंगे हम, एरोसॉल. ठीक है, ये ध्यान रहेगा. इसका क्या एग्जांपल है, स्मोक. आपने देखा होगा स्टूडेंट, स्मोक जो होते हैं उसके अंदर कार्बन के काले पार्टिकल्स हैंग करते हैं इन एयर. ओके, सो एयर के अंदर ये पार्टिकुलेट मैटर होता है, तो सॉलिड फॉर्म में हुआ ना, तो गैस के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स हैंग कर रहे हैं. तो स्मोक इज एन एग्जांपल. ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जो आपकी व्हीकल्स में से एग्जॉस्ट निकल रहा है, वो भी क्या है, एरोसॉल. अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है, जब डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड है और उसके अंदर गैस के पार्टिकल्स हैंग कर रहे हैं, द फेज इज गैस एंड द मीडियम इज लिक्विड, तो यहां पे हम उस तरह के कोलॉइड को नाम देते हैं फोम. फोम मतलब कि शेविंग क्रीम. आपने शेविंग क्रीम देखा होगा, एक लेदर होता है, इसमें झाग बनती है, तो लिक्विड के अंदर गैस. ठीक है, अब डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड है, उसके अंदर लिक्विड के ही पार्टिकल्स हैंग कर रहे हैं, तो लिक्विड इन लिक्विड जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, इमल्शन. डिस्पर्जन मीडियम भी, आपका डिस्पर्सिंग मीडियम भी लिक्विड है और डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड है, तो उसको हम क्या कहते हैं, किस तरह का कोलॉइड है वो, इमल्शन. जैसे कि मिल्क, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, मिल्क फेस क्रीम. अगर आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, मिल्क के अंदर लिक्विड इन लिक्विड पार्टिकल्स है, फैट एंड वाटर टुगेदर. ओके, तो यहाँ पे लिक्विड एंड लिक्विड इमल्शन. अब डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड है, उसके अंदर सॉलिड के पार्टिकल्स हैंग कर रहे हैं, तो ज्यादा लिक्विड कम सॉलिड, इसको हम क्या कहते हैं, सॉल. जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड. स्टूडेंट्स, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, एक तरह का सॉल है, लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपने सुना होगा, इट इज हेल्प इन ट्रीटिंग द इनडाइजेशन. पिंक कलर का लिक्विड होता है जो आपके इनडाइजेशन को सॉल्व करने में हेल्प करता है, राइट. अब जब डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड है, तो ये हमने गैस किया, फिर लिक्विड, अब सॉलिड. ठीक है, सॉलिड के अंदर गैस, सॉलिड ज्यादा गैस कम. ठीक है, तो उसे हम कहते हैं फोम. देखो यहां पर भी फोम है, और लिक्विड के अंदर गैस वो भी फोम है, और सॉलिड के अंदर गैस वो भी फोम है. ठीक है, याद रखेंगे. फोम, रबर, स्पंज. अब आप देखिए स्टूडेंट, स्पंज जो है हमने देखा था सॉलिड स्टेट में, पर बेसिकली स्टूडेंट ये क्या है, सॉलिड के अंदर गैस. यही तो है, सॉलिड है आपका जो स्पंज, उसके अंदर एयर ट्रैप्ड है, सो दिस इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन. सिमिलरली स्टूडेंट्स, सॉलिड डिस्पर्सिंग मीडियम है, उसके अंदर लिक्विड हैंग कर रहा है, सॉलिड ज्यादा लिक्विड कम, तो इसे बोलते हैं हम जेल. ठीक है, तो जेल किस तरह का है, जेल एक ऐसा कोलॉइडल सॉल्यूशन है जिसके अंदर डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड है, उसके अंदर लिक्विड है, डिस्पर्स्ड फेज. जेली, चीज, तो आपने जेली और चीज का टेक्सचर देखा है ना, तो वो पूरी तरह सॉलिड है ना वो पूरी तरह लिक्विड है, वो एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है या फिर एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर है किसका, जिसके अंदर डिस्पर्सिंग मीडियम तो क्या है, सॉलिड, और फेज है लिक्विड. तो सॉलिड और लिक्विड दोनों की तरह नजर आता है. अगर आप चीज का टेक्सचर देखें, इट्स नॉट कंप्लीटली सॉलिड एंड इट्स नॉट कंप्लीटली लिक्विड. गॉट इट. नाउ
डिस्पर्सिंग मीडियम है सॉलिड, डिस्पर्स्ड फेज भी सॉलिड है, सॉलिड के अंदर सॉलिड, तो इस तरह को हम बोलते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशंस को सॉलिड सॉल। एंड कलर्ड जेमस्टोन उसका एक एग्जाम्पल है, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू सी इट वेरी केयरफुली, यहाँ पे गैस एंड गैस नहीं, देखो लिक्विड एंड लिक्विड कोलॉइडल सॉल्यूशंस है, सॉलिड एंड सॉलिड कोलॉइडल सॉल्यूशंस है, पर गैस और गैस कोलॉइडल सॉल्यूशंस नहीं है। क्यों? इफ यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, गैस इन गैस ये हमने कहां पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था ट्रू सॉल्यूशंस में। रिमेंबर स्टूडेंट्स, एयर इज एन एग्जांपल ऑफ गैस इन गैस सॉल्यूशन, रिमेंबर। तो जब आप गैस को गैस से मिक्स करते हैं तो वो कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं बनता, वो ट्रू सॉल्यूशन बनता है, इसीलिए हमने यहाँ लिस्ट में उसे नहीं रखा है। गॉट इट? All right students, so here we come to the end of the explanation of this particular topic. So what did we study? हमने समझा कि suspensions क्या होते हैं, उनकी properties क्या होती है, colloids क्या होते हैं, और उनकी properties को भी हमने डिटेल में स्टडी किया। So hopefully students, you know now what are suspensions and colloids, and now it's the time for our quiz. So let's have a look at this quiz. First question, just see, a mixture of chalk powder इन वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो चौक और वाटर, अगर आप चौक को पानी में डालें एंड यू कीप ऑन स्टरिंग, इट विल नॉट डिसॉल्व, ओके, बट यू आर एबल टू सी द चौक पार्टिकल्स वेरी इजीली। तो इसका मतलब क्या हुआ? होमोजीनियस तो नहीं होता, एलिमेंट तो प्योर सब्सटेंस होता है, यहाँ तो मिक्सचर की बात हो रही है। ये कोलॉइडल सोल्यूशन भी नहीं है क्योंकि इसके पार्टिकल्स नजर आते हैं। तो ये कौन हो गए? सस्पेंशन। सस्पेंशन के अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो दिखते हैं आपको, ठीक है। कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो डिस्पर्स्ड फेज है वो दिखाई नहीं देता। गॉट इट? नेक्स्ट सी द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो टिंडल इफेक्ट? कौन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा? तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स, ट्रू सॉल्यूशंस टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, कोलॉइड्स भी करते हैं, सस्पेंशंस भी करते हैं, ठीक है। सो ब्लड तो टिंडल इफेक्ट शो करता है, फोम कोलॉइडल सॉल्यूशन है, टिंडल इफेक्ट शो करता है, जेली भी टिंडल इफेक्ट शो करेगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन है। सॉल्ट सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा, इट इज अ ट्रू सॉल्यूशन, ओके। पार्टिकल साइज इज वेरी टाइनी टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। ओके, द लास्ट वन स्टूडेंट्स, गेट रेडी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन? तो अभी हमने कोलॉइडल सॉल्यूशन के टाइप्स पढ़े थे। तो इमल्शन क्या होता है? बहुत आसान है। इमल्शन होता है जिसमें डिस्पर्सिंग मीडियम भी लिक्विड होता है और डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड होता है। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन, और एक और एग्जाम्पल दिया था इमल्शन का, फेस क्रीम। सो बोथ बी एंड सी आर एग्जाम्पल्स ऑफ इमल्शंस, जबकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज नॉट इमल्शन। ये क्या है? सॉल्ट का एग्जाम्पल है। रिमेंबर, लिक्विड के अंदर सॉलिड, so dispersing medium is liquid, उसके अंदर solid is as a dispersed phase, correct? All right students, here we come to the end of this quiz too. I hope you enjoyed watching this video, और आपको suspensions और colloids अब बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए हैं। I'll meet you in the next one, जहाँ पे हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंसेस की। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, मिक्सचर्स, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड, ये सब बिल्कुल आप रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंसेस। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।